Hello friends. So in the previous lecture we have studied about the two topics regarding with the air pollution, in which we have seen the causes of air pollution and what are the effects of air pollution. Now today in this lecture we are going to talk about how can we control the air pollution. Right? No doubt air pollution control करने के लिए naturally our personal awareness is very much important. कि पब्लिक जितनी अवेयर है उतना पोल्यूशन को हम कंट्रोल कर सकते हैं. इनफैक्ट अगर पब्लिक अवेयर है तो पोल्यूशन होगा ही नहीं. लेकिन अगर हम फर्दर अगर बात करें कि लाइक अगर हो रहा है तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाए. नो डाउट अगर ग्लोबल वार्मिंग है पोल्यूशन की वजह से तो ग्रो मोर ट्रीज, बी एन एक्टिव पार्टिसिपेंट so that the nature and the natural resources are getting conserved. But here we are going to talk about mainly about the anthropogenic causes, जिसमें हमने इंडस्ट्रीज देखा, ऑटोमोबाइल्स देखा, राइट, और थर्मल पावर स्टेशन देखा. तो ये जो तीन है that has caused the major air pollution. So how to control these things? अभी जैसे उसमें से जो एग्जॉस्ट निकल रहा है, जैसे कि यहां से निकल रहा है, बीच में कुछ ऐसा हर्डल प्लेस किया जाए कि बाकी जो निकलने वाली एयर है दैट रिमेन्स प्योर और that becomes clean. So we can say that in order to control air pollution we are going to study 3 devices. कितने devices हम study करने वाले हैं? We are going to talk about 3 different devices. Okay, so let us start with the 3 different devices. Okay, so in this, the first one you can see I'm explaining you over here is about the electrostatic precipitators. Okay, now these electrostatic precipitators, आपको इसमें मेन क्या याद रखना है, कौन सा डिवाइस कहाँ यूज होता है और उसका स्ट्रक्चर, वो डिवाइस का स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, और उसका वर्किंग कैसा है. So that is what you need to remember. Okay, so now here it is used in, so electrostatic precipitators are used in thermal power station. So a question can be asked that which device is used in thermal power station in order to reduce air pollution. So in that case you need to remember that it is electrostatic precipitators. Now you can see over here that there is a tube-like structure. At one end you can see these plates. The name is collecting plates. Actually they are electrodes. Electrodes means what? Some charged rods, right? So these are electrodes. Okay, then further from here we are going to enter the dirty air. Okay, जो भी polluted air होगा वो यहाँ से enter होगा. यहाँ पे हमने एक वायर रखे हुए हैं. ओके, और ये वायर कोरोना इफेक्ट देते हैं. हाँ, कोरोना इफेक्ट, व्हाट डज दैट मीन? जो भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उसके ऊपर वो निगेटिवली चार्ज, या तो फिर हम कह सकते हैं कोई भी सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर होते हैं उसके ऊपर वो कोई भी चार्ज इम्पार्ट कर देता है. इट इज गिविंग अ निगेटिव चार्ज. सो दैट इज व्हाट यू कॉल इट एज कोरोना इफेक्ट. तो यहाँ पे जो एक वायर होता है दैट इज इम्पार्टिंग a cloud-like structure to the dust particles, making it negatively charged. So जैसे ही वो particles, suspended particles, when they come over here, they get attracted towards this electrodes, right? So यहाँ से हमने we have entered the polluted air, whatever dust particles या अंदर suspended particular matter है, वहां से वो wire उसको एक negatively charge का उसको एक layer दे देगा, कोरोना इफेक्ट दे देगा. And then this are moved further. So over here the electrodes will capture those negatively charged things and the clean air comes out. Alright. So this is about the electrostatic precipitators. And let me tell you that it is highly efficient. It removes about 99% of the what we can say pollutants. So if it is asked, which is the most effective what I can say device to reduce air pollution, then no doubt it is electrostatic precipitators. Where electrostatic precipitators are used? You can say that they are used in thermal power station. Okay, and on what basis? Remember corona. I know that you are not going to forget that, but still corona effect. Okay. All right. The next device we are going to talk about is a scrubber. ठीक है,
अब ये जो स्क्रबर होता है, दिस स्क्रबर्स इज यूज्ड इन अ डिफरेंट काइंड ऑफ इंडस्ट्रियल एग्जॉस्ट. ठीक है, सो दिस इज टू रिमूव और टू क्लियर अप द इंडस्ट्रियल एग्जॉस्ट. अब what is used in this? The thing that is used over here is lime water. So two questions can be framed from here. The first one is, which device is used to clear the industrial exhaust? The answer is scrubber. Secondly, in scrubber, what thing as a pollution absorber or as a pollutant absorber is used? You can say that it is a lime water. Or lime water is used in which of the devices? Then you need to remember that it is a scrubber. Okay, fine. So the scrubber would have something like this kind of structure. Further, from here we will enter the dirty air, or you can say that the polluted air enters from here. Once it has entered from here, then it is blown towards this side. So all this polluted air will go up. Okay, and as soon as it goes up, you know that a twirl or a swirl is created. एक whirl created हो जाता है. So they all rotate this way. And this way, right? So जितने भी heavy particles होते हैं, जो particulated matter होते हैं, वो नीचे settle हो जाते हैं. Okay, they get settled down here. And बाकी के जो अंदर है वो क्या करेंगे, यहाँ पे we have placed or we are going to spray lime water. Okay, lime water. So as soon as when the air goes from this lime water will absorb the other waste or other pollutants. तो सस्पेंडेड पार्टिकल तो यहाँ पे बैठ जाएंगे क्योंकि वो एक व्हर्ल जैसे प्रोड्यूस होगा, और बाकी क्योंकि उनकी डेंसिटी होती है तो वो सेटल हो जाते हैं नीचे, और बाकी के जो होते हैं वो लाइम वाटर उसे एब्सॉर्ब कर लेता है. ठीक है, और यहां से फिर क्लीन एयर गोज आउट. सो दिस इज हाउ द स्क्रबर वर्क्स. ओके, द नेक्स्ट, सो द फर्स्ट वी हैव डन इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स, इन व्हिच वी हैव सीन दैट it is used in a thermal power station and it removes 99% of the particulate matter. So it is highly effective in that case. The second we have seen is a scrubber, right? Now the next we are going to talk about is automobile pollution. Okay, वो हमने देखा industrial exhaust का था, ये हमने thermal power station का देखा. Now we are going to talk here about how to control the automobile pollution. For this, we are going to use a device called catalytic converter. क्या यूज करने वाले हैं हम लोग? We are going to use the catalytic converter. Okay. हम जब भी catalytic converter, catalysis, you know, that is making the reaction faster without getting involved into it. So that is what you call it as a catalytic converter. But remember that अगर when we are placing this catalytic converter into the automobiles, then you need to remember that it is compulsory to go for unleaded petrol. Lead वाला पेट्रोल होगा तो catalytic converter will go useless. They will get inactivated. So it is a compulsory that whenever one go for catalytic converter, the use of unleaded petrol is must. So you need to remember over here that why use of unleaded petrol is must, because when we go for catalytic converter, no doubt it is very expensive. If you are using a leaded petrol, it will inactivate it. That lead in that will inactivate this catalytic converter. So this is the main point. Okay, so अनलीड पेट्रोल यूज करके कैटालाइटिक कन्वर्टर आप उसको यूज कर सकते हो. सेकेंडली, ऑफ कोर्स अगर पोल्यूशन को रोकना है तो व्हीकल को मेंटेन कंडीशन में रखना होगा. इट्स नॉट दैट यू जस्ट कीप ऑन यूजिंग एंड देयर इज नो व्हाट यू कैन से, उसका कोई मेंटेनेंस नहीं है. अगर मेंटेनेंस नहीं है तो आप कुछ भी यूज करो, तो एक मेंटेनेंस का पॉइंट भी इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है, कि मेंटेनेंस जरूरी है किसी भी व्हीकल्स की, ऑटोमोबाइल्स की. ओके, अब हम बात करते हैं
catalytic converters की. So it contains expensive metals like platinum and palladium rhodium. This is clear? तो बहुत ही एक्सपेंसिव मटेरियल होता है इसके अंदर, प्लेटिनम, पैलेडियम एंड रोडियम. ये तीन का कॉम्बिनेशन होता है, रिमेंबर, प्लेटिनम, पैलेडियम एंड रोडियम का होता है. और ये कैटलिस्ट के तरीके से यहाँ पे ऐड करते हैं. जैसे ही ऑटोमोबाइल से एग्जॉस्ट बाहर निकलता है, ये कैटेलाइसिस करके उसको हटा देते हैं, और फिर जो भी एग्जॉस्ट बाहर निकलता है दैट इज इन द प्योर फॉर्म, मतलब एयर अच्छी बन के बाहर निकलती है. तो जितने भी पॉइजनस फॉर्म्स के गैसेस होते हैं, दे आर कन्वर्टेड इनटू नॉन पॉइजनस फॉर्म्स एंड रिलीज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर. रिमेंबर दैट. सो हियर देयर आर टू एग्जांपल्स गिवन. अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स आर कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. ओके, जो अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हो जाते हैं. मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वाटर इज अ नॉर्मल थिंग, इट कैन बी what we say removed as an exhaust instead of hydrocarbons. तो ये कैटालाइटिक कन्वर्टर क्या करेगा? हाइड्रोकार्बन्स को वो कन्वर्ट कर देगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, सो लेस हार्मफुल है. द नेक्स्ट इज नाइट्रिक ऑक्साइड इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू नाइट्रोजन गैस. नाइट्रोजन गैस तो एक नॉर्मल सा कंस्टिट्यूएंट है. सो नेचुरली आप कह सकते हो कि यहाँ पे क्या होगा, जो मोर पॉइजनस गैसेस है वो नॉर्मल गैसेस में कन्वर्ट होकर बाहर निकल जाते हैं. यूज ऑफ अनलीडेड पेट्रोल इन द कैटालाइटिक कन्वर्टर. एंड एज आई सेड दैट व्हीकल का मेंटेनेंस बहुत ही जरूरी है. तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन आ सकता है? विच फॉर ऑटोमोबाइल्स विच डिवाइस इज यूज? कैटालाइटिक कन्वर्टर. सेकेंडली, कैटालाइटिक कन्वर्टर में कौन से एक्सपेंसिव मटेरियल्स यूज किए जाते हैं? दैट कैन बी यूज्ड. नेक्स्ट, कैटालाइटिक कन्वर्टर किस बेसिस पे काम करता है? तो यू नीड टू रिमेंबर दैट इट कन्वर्ट्स द what you can say poisonous gases into non-poisonous form and they are removed. And the next is, you can give these two examples, and vehicle maintenance is necessary. So these are the three main important devices जिस पे काफी बार क्वेश्चन आते हैं नीट में, so you need to remember this. So this is about the control of air pollution. After completing the previous topic, let us start with a small topic that is given in your book, that is what you call it as the control of vehicle pollution in Delhi. Delhi में एक vehicle का pollution का case study हुआ था, तो वो हम स्टडी करेंगे. शायद इसमें से कोई क्वेश्चन आ सकता है, पर्टिकुलरली नॉर्म्स के रिलेटेड क्वेश्चन आता है और सीएनजी के रिलेटेड क्वेश्चन आता है. सो कंट्रोलिंग व्हीकल पोल्यूशन एक केस स्टडी है दिल्ली के अंदर. इट इज जस्ट लाइक अ स्टोरी, और मैं आपको स्टोरी बताती हूँ. तो 1990s में पता चला कि दिल्ली इज वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, और जो 41 मोस्ट पोल्यूटेड कंट्रीज थी, स्टेट्स थे दुनिया के, उसमें से सबसे ज्यादा पोल्यूटेड 4th रैंक पे दिल्ली था, जो प्रेजेंट में 1st रैंक पे है. ओके, सो यू कैन से दैट तो उस टाइम पे दिल्ली का पोल्यूशन 1990s में भी बहुत ज्यादा था. वी नो दैट टुडे आल्सो इट इज मोर, बट इट इज डन दैट टाइम, सो वी विल कंसीडर अकॉर्डिंग. तो 1990s में तो पीपल वर वेरी मच लाइक वरीड अबाउट, इवन गवर्नमेंट वाज वरीड अबाउट 1990s में. तो एक PIL सुप्रीम कोर्ट ने पास किया. व्हाट वाज दैट PIL? PIL, रिमेंबर द फुल फॉर्म, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन. कि पब्लिक के इंटरेस्ट में गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टेप लिया. क्या लिया था? PIL. Where it was taken? It was taken in Delhi. तो गवर्नमेंट ने कंपल्सरी कर दिया कि भाई ये पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, सस्पेंडेड पार्टिकल बहुत ज्यादा है, लेड का यूज पेट्रोल में बहुत ज्यादा हो रहा है, हाइड्रोकार्बन ज्यादा है, सल्फर ज्यादा है. तो उस सब चीजों को रिड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट के वाया दे सेंट अ PIL. ओके, एंड गवर्नमेंट स्ट्रिक्टली फॉर्म द नॉर्म्स. उन्होंने कहा कि जितनी भी जो डीजल वाली या पेट्रोल वाली ऑटोमोबाइल्स है उसे CNG पे स्विच किया जाए. तो ऑल दोज व्हीकल्स दोज वो वर्किंग ऑन पेट्रोल एंड डीजल मस्ट बी स्विच्ड टू CNG, राइट? तो CNG पे स्विच किया गया. ओके, तो एंड ऑफ 2002 ऑल द पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन दिल्ली वर ऑल ऑन CNG. ओके, तो 1990s में पता चला, और 2002 तक तो सारे ही जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जो गवर्नमेंट पब्लिक ट्रांसपोर्ट थे,
that was all switched to CNG, that is compressed natural gas. Okay, अब benefits of CNG उन्होंने क्या फील किया कि सबसे पहले वो चीपर फ्यूल है, सेकेंडली गैस है तो वो हम कह सकते हैं कि उसको चोरी नहीं किया जा सकता, इट कैन नॉट बी थीफ, जैसे कि पेट्रोल चोरी होता है, सीएनजी का चोरी होना नामुमकिन है. ओके, एंड देन इट बर्न्स एफिशिएंटली, सबसे बेस्ट था ये बहुत एफिशिएंटली बर्न होता है, इसमें कोई रेसिड्यू नहीं रहता, ये नॉन कोरोसिव है, ये नॉन कार्सिनोजेनिक है अनलाइक पेट्रोल. ठीक है, तो ये इसके बेनिफिट्स थे. बट ऑन द अदर साइड सीएनजी की पाइपलाइंस वगैरह सेट करना, सीएनजी का अनइंटरप्टेड सप्लाई देना was really very tough. So the first thing is what the positives of CNG, and the next is what were the difficulties in what we can say placing the CNG everywhere. Okay, तो ये पॉजिटिव था और ये नेगेटिव था. ओके, नेक्स्ट दूसरे क्या स्टेप्स लिए गवर्नमेंट ने, तो दे फेज आउट ऑल द ओल्ड व्हीकल्स. जितने भी पुराने व्हीकल थे लगता था कि इनका इंजन एफिशिएंट नहीं है, जस्ट दे हैव रिमूव्ड, उसको निकाल दिया गया. The next is low sulfur petrol and diesel. कंपल्सरी पेट्रोल और डीजल में सल्फर का अमाउंट रिड्यूस कर दिया. अनलीडेड पेट्रोल को उन्होंने प्रमोट किया. नेक्स्ट कैटालाइटिक कन्वर्टर जो भी हमने पढ़ा, वो जो रोडियम पैलेडियम वाला जो था, ओके, दैट इज यूज्ड. देन नेक्स्ट इज स्ट्रिक्ट नॉर्म्स ला दिए, स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस ला दिए गए. ठीक है, तो उसमें क्या था कि रोड मैप. अब ये रोड मैप क्या है, हमें भी पता है कि लाइक वेरेवर वी गो, यू नो, कहीं कहीं ना जगह पे ब्लू कलर के बोर्ड्स होते हैं ताकि हम रास्ता भूल ना जाए, बिकॉज यू नो दैट मेनी टाइम्स हम इधर उधर जाने में नई जगह पे जाते हैं तो रास्ता भूल जाते हैं. उस टाइम पे काफी कुछ व्हाट यू कैन से कि फ्यूल का अननेसेसरी बर्निंग होता है, अननेसेसरी पोल्यूशन होता है. तो रोड मैप्स लगाए गए ताकि जैसे कि अगर कहीं से कोई बंदा कहीं पे जा रहा है, डेस्टिनेशन किसी वन डेस्टिनेशन टू अनदर डेस्टिनेशन, रोड मैप से वो इजीली अपनी जगह पे पहुंच सकता है विदाउट वेस्टिंग द फ्यूल, विदाउट कॉजिंग मतलब कंट्रीब्यूटिंग टू द लेसर पोल्यूशन. ठीक है, तो एक रोड मैप्स बनाए गए. और रूल्स में न्यू नॉर्म्स में क्या था, न्यू ऑटो फ्यूल पॉलिसी, उसके अंदर उन्होंने क्या किया, तो रोड मैप्स बनाए गए. नेक्स्ट, सल्फर और एरोमेटिक कंपाउंड्स पेट्रोल और डीजल में कम कर दिए गए. तो एक था यूरो 3 नॉर्म्स. कौन सा नॉर्म्स था, यूरो 3 नॉर्म्स. यूरो 3 नॉर्म्स में इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, सल्फर जो होता है डीजल के अंदर उसको 350 पार्ट्स पर मिलियन कर दिया यूरो 3 नॉर्म्स में. कंपल्सरी नॉर्म्स डाल दिया गया और बोला कि जो पेट्रोल है या डीजल है, तो डीजल में सल्फर का अमाउंट 350 पार्ट्स पर मिलियन होना चाहिए और पेट्रोल के अंदर 150 पार्ट्स पर मिलियन होना चाहिए. ओके, सो रिमेंबर दिस बेटा, दिस इज इंपॉर्टेंट. डीजल में कितना होना चाहिए, 350 पार्ट्स पर मिलियन, और पेट्रोल में कितना होना चाहिए, 150 पार्ट्स पर मिलियन. मतलब इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, दैट वाज अ स्ट्रिक्ट नॉर्म. नेक्स्ट, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स कितने होना चाहिए, ओनली 42%. वॉट एवर द फ्यूल इज 42% से ज्यादा नहीं, बिकॉज जो प्रीवियसली जो पेट्रोल डीजल और जो कुछ भी फ्यूल यूज हो रही थी दैट वाज फुल ऑफ लीड. ओके, गोल ऑफ गवर्नमेंट, एक्चुअली गवर्नमेंट ने ऐसा डिसाइड किया था कि 50 ppm पर सल्फर कर देना चाहिए और पेट्रोल में और डीजल में भी 50 ppm हो जाना चाहिए. मतलब 50 मतलब काफी कम. इनिशियली 350 किया, फिर 50 ppm तक उनका गोल था. ओके, और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स इंस्टेड ऑफ 45 और 42 इट शुड बी रिड्यूस्ड. ये उनका गोल था कि 35% हो जाना चाहिए. सो दिस वाज द गोल एंड दिस इज व्हाट दे इंप्लीमेंटेड. ओके, और इंजन का अपग्रेडेशन, जैसे मैंने कहा कि ओल्ड व्हीकल्स जो पुराने इंजन वाले थे वो सब फेज आउट हो गए. ओके, और इसमें सबसे अच्छा एक ये बेनिफिट हुआ कि वी कैन से 1997 से 2007 तक, ओके, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड का काफी लो लेवल पाया गया दिल्ली में, क्योंकि गवर्नमेंट और पब्लिक दोनों ने मिलकर काफी सारे अच्छे से एफर्ट किए. ओके, सो कौन से टाइम में 1997 से 2005 तक, 1997 से 2005 तक अमाउंट ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड अमाउंट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, दैट इज ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, रिड्यूस हुआ, काफी रिड्यूस हुआ ड्यूरिंग दिस फेज. सो दिस वाज ऑल अबाउट द केस स्टडी.
कि टेक्स्ट बुक में कुछ दिया है कि यूरो 3 नॉर्म्स 4 व्हीलर्स के लिए भरत 3 स्टेज, फिर कुछ स्टेज में भरत 3 स्टेज है, कुछ स्टेज में 2 व्हीलर्स के लिए भरत 3 भरत 4 स्टेज है, वो आप थोड़ा रेफर कर लेना कि कौन से स्टेट्स में कौन सा नॉर्म्स उन्होंने फिर अप्लाई किया है। तो यहाँ पे नॉर्म्स में से क्वेश्चंस आते हैं, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ सीएनजी आ सकता है, फिर पीआईएल का फुल फॉर्म आ सकता है। दिस थिंग्स कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन एज इट इज इम्पोर्टेंट। या तो फिर कौन से स्टेप्स लिए गए थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने या तो फिर गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली ने टू रिड्यूस दैट एयर पोल्यूशन। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर।